ISO is of the view that top management involvement, leadership involvement is a very important element of the success of the ISO initiative. So leadership and commitment becomes a very important auditable element from a ISO 27001 standpoint. So clause number 5 is about leadership. 5.1 Leadership and commitment. Top management shall demonstrate leadership and commitment with respect to the information security management system by A, ensuring that the IS policy and the IS objectives are established and are compatible with the strategic direction of the organization. तो अगर आप एज ऑडिटर ऑडिट कर रहे हो और आपको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी मिल गई, अगर आपको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स मिल गए हैं, we conclude that leadership has done the necessary to be able to manage your information security management system. Everyone, simple thought. B, ensuring the integration of ISMS into the organizational processes. So your organization, let's say, already has a ISO 9001. Yeah, you have a project management structure. You have a project management structure in your organization. Your information security cannot be a standalone element. आपको दोनों का इंटीग्रेशन, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस और ISO 27001 का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, नहीं तो 5.1 बी के अगेंस्ट में वो नॉन कन्फॉर्मिटी लिख देगा. करना क्या है? इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा. इंटीग्रेशन नहीं करेंगे तो they will mark this as a non-conformity. नो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस है आपके पास ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने का, अपना बिजनेस मैनेज करने का कोई भी सिस्टम है. Say that again. कहाँ मांग रहा है? वो आपसे कह रहा है कि बस मुझे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी चाहिए, मुझे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव चाहिए. अगर है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो हमारा काम एज अ ऑडिटर, हमारा डिपार्टमेंट नहीं है. कैन यू गिव दिस एज अ सजेशन? नो, यू शुड नॉट. व्हाट डज ISO 27001 टेल यू? वो कह रहा है कि साहब, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में दो चीजें अगर मुझे मिली तो आई विल अंडरस्टैंड दैट टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट है टुवर्ड्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, पीरियड. आएगा आगे. ऑब्वियसली आगे तो स्टैंडर्ड आपको डिफाइन करेगा ही. सी, ensuring that the resources needed for ISMS are available. हर ISO स्टैंडर्ड घुमा फिरा के रिसोर्स की आइडेंटिफिकेशन और उनकी अवेलेबिलिटी पे बहुत जोर डालेगा. अगेन, if you have designed your information security such that resources are made available for implementation of ISMS, तो हम उसको लीडरशिप के कमिटमेंट का डिमॉन्स्ट्रेशन मानते हैं. अगर रिसोर्स नहीं मिला तो बोलेंगे लीडरशिप कमिटेड नहीं थी. मिल गया तो हम उसको यहां भी क्लॉज नंबर 5.1.c में कंफर्मिंग बोल देंगे. D, communicating the importance of effectiveness of the ISMS and of conforming to the ISMS requirement. Ideally, what organizations will tend to do is they will have emailers. मैनेजमेंट की तरफ से ईमेल्स शूट हो जाएंगे एम्प्लॉयज को, या पोस्टर्स ऑर्गेनाइजेशन में लगे हुए हैं, wherein we are communicating ISMS का इफेक्टिवनेस क्यों जरूरी है कस्टमर के रिक्वायरमेंट को मीट करना. एक और आएगा. हमको क्या चाहिए एज ऑडिटर? एविडेंस दैट the organization has communicated the importance of effective ISMS
and the importance of conforming to the ISMS requirements. So ideally, what you do as a implementation professional, एक जेनेरिक सा ईमेल बना के हम ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कर देते हैं. वो ईमेल मे बी once every 3 months एम्प्लॉयज को भेजा जा रहा है. हमारा काम हो गया. एज ऑडिटर हमको एविडेंस चाहिए दैट द सेम हैज बीन कम्युनिकेटेड टू द एम्प्लॉयज. बस. हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल. Ensuring that ISMS achieves its intended outcomes, directing and supporting persons to contribute to the effectiveness of ISMS, promoting continual improvement. So generally, D और G एक ही email में जाता है. Supporting other relevant management roles to demonstrate their leadership as it applies to the areas of responsibility. इसका एक शॉर्टकट जुगाड़ क्या है? आप ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप का डेफिनेशन ही सेट कर दो. आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को लीडर में शुमार कर दो, अपने आप ये प्रॉब्लम हैंडल हो जाएगी. नाउ द सीसो और हुएवर इज रनिंग द शो, उसके द्वारा भेजा हुआ भी मेल, उसके द्वारा कंडक्टेड मीटिंग्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कम्युनिकेशन. Welcome to the interesting areas now. Clause 5.2 policy. Top management shall establish an IS policy that A is appropriate to the purpose of the organization. तो जो IS की पॉलिसी है, that must be in keeping with the legal reason why you have created an organization. हर ऑर्गेनाइजेशन जब बन रही है तो उन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट में अपना ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस लिखा होगा. So your policy has to be in keeping with the purpose of your organization. It either includes information security objectives or provides framework for setting the IS objectives. दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है. या तो आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का पॉलिसी के अंदर ही अपने ऑब्जेक्टिव्स मेंशन कर दो, या ऐसी चीजें मेंशन करो जिसको इस्तेमाल करके मैं ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट कर सकूं. Includes a commitment to satisfy applicable requirements. Includes a commitment to continual improvement of ISMS. ये दो स्टेटमेंट्स मोटा मोटा एज इज आपके पॉलिसी स्टेटमेंट में चले जाते हैं कि मुझे किसी भी तरीके से आप डेमोन्स्ट्रेट कर दो. तो आइडली ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा? सेम वर्बियाज इस्तेमाल कर देगा, दैट वी आर कमिटेड टू सेटिस्फाई रिक्वायरमेंट्स एंड वी आर कमिटेड टू कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट. हमारे पास एज अ ऑडिटर बहुत कम स्कोप है पॉलिसी में. हम एडवाइस दे सकते हैं कि सर आपका पर्पस थोड़ा डिविएट हो रहा है फ्रॉम द ओरिजिनल इंटेंडेड पर्पस एज पर योर लीगल डॉक्यूमेंट्स. बाकी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते. The information security policy shall be available as a DI, be communicated within the organization. फिर आपके लिए ऑडिटेबल एलिमेंट क्या आ गया? कम्युनिकेशन. पॉलिसी एक बार बन के अप्रूव हो गई तो आपका एज ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? दैट इट इज कम्युनिकेटेड. ध्यान रखिएगा, रेगुलर अट्रिशन होता जाएगा, रेगुलरली नए लोग आते जाएंगे, तो नए लोगों का कम्युनिकेशन भी स्कोप में घुसाते जाइए अपने ऑडिट के. Be available to interested parties as appropriate. Again, emailers
and posters become the order of the day. So I have to send emails to all employees updating them about the information security policy, and the same emailer has to go out to interested parties also as you find appropriate. Simple thought, everyone. Online folks. Yes, sir. Yeah. Five point three, organizations roles, responsibilities and authorities. हाँ, इसी का 6.2 ऑब्जेक्टिव्स जहां मेंशन्ड होगा. Organizational roles, responsibilities and authorities. Top management shall ensure that responsibilities and authorities for roles relevant to ISMS are assigned and communicated within the organization. तो दोनों का एविडेंस लगेगा, रोल के असाइनमेंट का और रोल के कम्युनिकेशन का. Top management shall assign responsibility and authority for ensuring that ISMS conforms to the requirement of this document. B, reporting on the performance of ISMS. Ideally, all policies, all procedures, all documents will have some sort of a RACI, RASIC, roles and responsibility. आपका डिफाइंड होगा किसी ना किसी डॉक्यूमेंट में. मेरा पर्सनल एडवाइस होगा, अगर आप इंप्लीमेंटेशन प्रोफेशनल हो, एक समरी डॉक्यूमेंट ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जरूर क्रिएट करना चाहिए. तो लेट्स से एसेट मैनेजमेंट का पॉलिसी बनाए. एसेट मैनेजमेंट की पॉलिसी में आपने मेंशन किया है कि इस पॉलिसी का ओनर कौन है, इसमें किसको क्या करना है. वो वाला सेक्शन कॉपी कीजिए, एक नया डॉक्यूमेंट में जाके पेस्ट कर लीजिए. हर पॉलिसी में से, हर डॉक्यूमेंट में से रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक सेपरेट डॉक्यूमेंट में पेस्ट करते जाइए. फाइनली यू विल हैव अ समराइज्ड लिस्ट ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विज़-विज़ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. क्योंकि एक और एलिमेंट ऐड करना है, ये वाला छूट जाएगा अदरवाइज. परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग कौन करेगा फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज अ मैंडेट फ्रॉम द स्टैंडर्ड विज़-विज़ क्लॉज नंबर 5.3b. क्या आप नॉन कन्फॉर्मिटी दे सकते हैं इफ यू डोंट फाइंड अ सेपरेट डॉक्यूमेंट? नो. एज ऑडिटर आपको ऑडिट क्या करना है कि हर डॉक्यूमेंट में आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइंड होनी चाहिए. जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन हुई हैं और वो कम्युनिकेट हुई हैं कि नहीं, ये दोनों आपके लिए ऑडिटेबल एलिमेंट है. सिंपल थॉट एवरीवन.